Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। शायद उनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया है, फिर हम उन्हें फोन करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stocks gain more than 0.5%. Sensex reclaims 51,000 mark. Nifty ends above 15,300 level. Global indices trade mixed amid worries of inflation rise, and gold prices climb to trade beyond 49,000 rupees per 10 gram at multi-commodity exchange. घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स फिर 51,000 के ऊपर जा पहुंचा। निफ्टी 15,300 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। मुद्रास्फीति में वृद्धि को लेकर चिंताओं के बीच वैश्विक सूचकांकों में कारोबार मिला जुला रहा और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर जा पहुंचा। हमारा फिर संपर्क जुड़ गया है मिस्टर A.K. भट्टाचार्य से। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। नमस्कार जी, नमस्कार। और अब शुरुआत करते हैं सेंसेक्स की स्टोरी से। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स फिर 51,000 के ऊपर पहुंच गया और निफ्टी 15,300 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.75% की तेजी से 380 अंक बढ़कर 51,018 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.61% की वृद्धि से 93 अंक बढ़कर 15,301 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.14% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.69% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex today closed with gains of 380 points. The index at the Bombay Stock Exchange regained the 51,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange ended above 15,300 level. The Sensex climbed 380 points or 0.75% to finish at 51,018. The Nifty also added 93 points or 0.61% to settle at 15,301. In the BSE broader market, the mid-cap index fell 0.14%, while the small-cap index appreciated 0.69%. In the Sensex pack, shares of 22 companies climbed, while 8 logged losses. Bajaj Finserv was the top gainer as it climbed 4.8%, followed by Bajaj Finance, which gained 2.7%. Infosys climbed 2.6% and Maruti rose 1.8%. HDFC and Larsen and Tubro both added more than 1.5%. On the other hand, Power Grid tumbled 3.1% and NTPC declined 1.8%. ONGC fell 1.2% and Kotak Bank slipped 0.6%. In sectoral indices, 13 out of 19 sectors climbed. The realty sector was the top gainer as it added 2.9%, followed by IT sector stocks which gained 1.9%. Tech rose 1.7%. In losers, metal plunged 2.4%, power declined 2.3%, and utilities ended 1.8% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,950 companies gained while 1,185 declined. Shares of 146 companies remained unchanged. Mr. Bhattacharya, after 2 straight days of dull sessions, the Sensex today gained 380 points, and in fact it closed above the psychological mark of 51,000, and Nifty also crossed the 15,300 mark. How do you view this? Apart from the falling cases which the indices market is obviously reacting to, what other factors do you see in the surge? Well, there are a couple of factors that have been behind this surge today. Number one, as you pointed out, is that the second wave seems to be clearly and in a decisive way it is on a downward journey, in a sense that while it rose very sharply, it is also falling at a rate which is given some comfort
that probably the economic activities that had been restrained by the different state governments in different regions of the country will gradually be, maybe in a calibrated way, maybe in a slow and steady fashion, will be relaxed. Those controls will be relaxed. So that has given some hope to the markets that probably economic activity should come back. The number two factor is there is also a hope in the market about the government's plan to come out with a rescue package or a stimulus package. There are clear indications from the government side. There are reports to that effect which suggest that the government may be coming out with specific sectoral packages, particularly in the areas of the hospitality sector, the automobile sector, the MSME sector. So taken together with the RBI, Reserve Bank of India package that was announced a month and a half ago, the markets are seeing that the authorities are responding to a situation which probably will ease the pressure and the pain points of the economy. And the third factor, which is contributed to the tailwind of the stock market rise today, in my view, is what has happened to the global world markets, which have been influenced very positively by a large number of global central banks, which have given up the idea of tightening the money supplies or raising interest rates, led by the European Commission, the European Bank, the German Bank, the US Fed. So there is a general sense that the loose monetary policy will continue in spite of the developments on the inflation front. So this is the third factor which has acted as a kind of a tailwind to the markets going up today. That's my brief analysis of how the markets have developed today. But let me say that there are concerns about the markets because the Indian markets have crossed the GDP level by around 12 percentage points. So it is now well over $3 trillion. And I think that is a factor which will act as a kind of a cap on the markets, easy movement above these levels. So I would say that it is not yet at that same stratospheric level of 147% of India's GDP in 2007, but to be staying at 112% of GDP, the market cap being what it is today, is certainly something that the market participants will take due note of, and the market trajectory going forward will certainly be informed by that realization that the markets are indeed getting expensive in the Indian scenario. So Mr. Bhattacharya, जैसा आप कह रहे हैं कि अब काफी अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है, कोविड के जो केसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्टिमुलस आने वाले है, काफी उसके इंडिकेशंस हैं, स्ट्रांग इंडिकेशंस, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने कहा है कि वो अपनी जो पॉलिसी है उसको लूज बना के रखेंगे. लेकिन ऐसे में जब आप जैसा बता रहे हैं कि वैल्यूएशंस इतनी हाई हैं बाजार में, ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी आगे के लिए, उनकी अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा वक्त है जब उन्हें ठीक समझ के मार्केट में एंट्री या रिटेंशन अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है, क्योंकि एक तरफ जो असेसमेंट जो है, अगर आप सारे जो ग्लोबल एनालिस्ट जो इंडियन मार्केट को बहुत कड़ी नजर से देखते हैं, उनका कहना ये है कि इंडियन मार्केट्स में अभी भी काफी वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, काफी जूस अभी बचा है. तो वो जूस को आप ना छोड़ के इन्वेस्ट करते रहिए आप, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बाय दिसंबर तक बहुत लोगों का मानना है कि एक बुल सिनेरियो में एक जो सेंसेक्स करीबन 60,000 तक भी पहुंच सकता है, ये एक सिनेरियो कह रहा है. दूसरी तरफ कह रहा है कि एक जो मार्केट की जो एक्सपेंसिव होने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो काफी सूझबूझ से होनी चाहिए. जहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहां पे बुक करना चाहिए, जहां पे लो एंट्री पॉइंट हो वहां पे लो एंट्री पॉइंट में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करिए। पर मैं ये समझता हूं कि अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, उनके लिए ये एक ऐसा टाइम है जहां पे जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जो टाइमली इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो जो एक एवेन्यू जो है वो जरूर अभी भी खुला है और खुला रहेगा। और ऐसी मार्केट की अवस्था में मैं समझता हूं ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिप जैसे कि जो बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा एक एवेन्यू है, उसको अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिस्टर भट्टाचार्य, आरबीआई ने अभी हाल में कहा था कि डिमांड शॉक की चांसेस कहीं ज्यादा है, सप्लाई डिसरप्शन विल बी मच लेस इन सेकेंड वेव कंपेयर टू फर्स्ट वेव। सो आपको क्या लगता है कि डिमांड को रिवाइव करने के लिए क्या और स्टेप्स आ सकते हैं? जो फिस्कल मेजर्स की आप बात कर रहे हैं, और क्या मॉनेटरी लेवल पर भी मेजर्स आ सकते हैं जो डिमांड क्रिएट करेंगे? देखिए, जो इकोनॉमी की जो इस वक्त की जो अवस्था जो है, उसमें डिमांड की तो कमी तो है ही, और ये डिमांड की कमी का एक दूसरा पहलू हम इस वक्त उसको ठीक तरह से नहीं समझ रहे हैं। वो है कि जो सेकेंड वेव का जो एक डरावना की तरह से जो आया, उससे जो रिस्क अवर्शन जो आया है वो वैक्सीनेशन के बाद ही जा सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि हालांकि जो सेकेंड वेव का जो डिक्लाइन काफी जल्दी हो रहा है, पर लोगों के अंदर जो एक भय पैदा हुआ था सेकेंड वेव में, उससे वो पूरी तरह से जो इकोनॉमी खोलने के बाद, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खोल लेने के बाद, छूट देने के बाद भी मैं समझता हूं लोगों में एक भय और एक डर रहेगा। और सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डिमांड जो बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि वो काफी में उसमें एक अंकुश लगा रहेगा। ये एक तरफ की बात है। तो जो आप जिसने कहा कि जो आरबीआई ने कहा कि डिमांड एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, एकदम सही बात है। पर दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो एक कमोडिटी मार्केट जो है वो अब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑन फायर है। हर कमोडिटी में आप देखेंगे जो एक प्राइस लेवल बढ़ गया है। अगर आप जो भी कमोडिटी को, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, और मैं समझता हूं कि जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो है, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काफी एक जो इनकम जो एक सप्लीमेंट जो आएगा, इनकम बूस्ट जो आएगा, उसको भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जून में जो एक बैठक जो होगी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें ये सारी चीजों को देखना है। पर मुझे लगता है कि वो जो स्टांस जो होगा अभी भी एकोमोडेटिव स्टांस होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ जल्दी आ जाए। पर डिमांड की जो एक आशंका जो है, चिंता है, वो अभी भी रहेगी, क्योंकि ये रिकवरी काफी स्टैगर्ड रहेगी। जिस तरह से हम पहले सोच रहे थे कि जितनी जल्दी सेकेंड वेव बढ़ गया, उतनी जल्दी सेकेंड वेव नीचे जा रहा है, तो डिमांड भी जल्दी वापस आ जाएगी। मैं समझता हूं कि डिमांड की जो रिकवरी होगी काफी स्टैगर्ड और इलोंगेटेड रिकवरी, डिमांड रिकवरी होगी, क्योंकि लोगों में भय अभी भी है। और वैक्सीनेशन जब तक न हम दिसंबर के तक जब 70% अगर कर सकते हैं, जैसे हम काफी लोगों प्लान किया है, तब तक ये मैं समझता हूं कि डिमांड की रिकवरी पूरी अपनी जगह नहीं आ सकती। Mr. Bhattacharya, you were just talking about the fiscal stimulus package, which is expected. It's being talked about that the government is going to come out with another fiscal stimulus package. So, which are the sectors do you think that need the maximum, most help from the government right now? Which are the sectors which the government would focus on? Well, I think the obvious sector would be the micro, small and medium enterprises sector. This is a huge sector. This has been hugely stressed. The employees, the people, the unorganized sector, the MSME sector, entrepreneurs, they have taken a big hit in the second wave. There are, 99% of India's corporate sector is comprised of these MSME companies. Reserve Bank of India has done some work, 50,000 crore of additional allocation for MSME industries. And then you have got the loan restructuring plan number 2, the loan that has been done. But I think you need similar fiscal measures now
for MSME sectors, similar fiscal measures for the automobile sector, which have been very badly hit because mobility has been hit and people are not making those investments in acquiring the second car or replacing an old car. Third sector would be the hospitality sector, tourism sector. People have completely stopped consuming these sectors. So at least these 3 or 4 sectors are very clearly crying for some sort of a support, and also these are the sectors which are highly employment intensive sectors, and you will be able, if these sectors come back to their original life or original pace of activity, then my sense is that even the employment sector, which is going through another kind of stress, where the unemployment level according to CMI has gone up to 14% or so, now that needs also some sort of support. So fiscal or a stimulus measure, some allocations by the government to these sectors will probably go a long way in relieving the stress in these areas. So आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो भी इस बात का संज्ञान ले रहे हैं, बिकॉज दे ऑलवेज से कि जो बाजार है वो इकोनॉमी से या जो स्टेप्स लिए जाते हैं उससे थोड़ा अहेड रहता है, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रही है कोविड हिट सेक्टर्स में, जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, रिटेल, ऑटो, हॉस्पिटैलिटी, लेजर. सो आपको लगता है ये रिबाउंड होप्स हैं जो उनको एक आशा है कि यहाँ पर रिवाइवल होगा? आपको लगता है ये राइट अप्रोच है या रिस्की अप्रोच है? देखिए, जो अप्रोच जिसे हम मार्केट की भाषा में पुरानी तरफ से कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन, तो एक रिस्की अप्रोच तो जरूर है, पर जिस मार्केट में स्ट्रेस है, जिस मार्केट में फाइनेंशियल सपोर्ट की आशा है, उस मार्केट को रिकवरी होने में का भी आशा हो सकता है. सो मैं समझता हूं कि जो मार्केट जो दर्शा रहा है इस वक्त, वो वही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस सेक्टर्स में जल्दी रिकवरी होने की उम्मीद कर सकते हैं हम, और उसी उम्मीद को रिफ्लेक्ट करते हुए मार्केट की जो मिड कैप इंडेक्स कहें या स्मॉल कैप इंडेक्स कहें, या जो एमएसएमई सेक्टर्स की जो इंडेक्स जो है, एक एनएसएमई एक एमएसएमई सेक्टर के भी इंडेक्स है, वो भी इंडेक्स काफी अच्छा काम कर वैल्यूएशन दिखा रहा है. तो मैं समझता हूँ वैसे ही ट्रेंड चलता रहेगा. एक करेंसी पे, हालांकि आज करेंसी बाजार बंद था, लेकिन डॉलर 4.5 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. रुपए में हम खासी मजबूती देख रहे हैं और एक्सपोर्ट्स में हम मजबूती देख रहे हैं. मिस्टर भट्टाचार्य, जो फर्स्ट 7 वीक्स हैं अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के, उसमें $51 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, और FY20 से कंपेयर करें, बिकॉज पिछले साल से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उससे पिछले अगर हम FY20 से कंपेयर करें तो 11% की बढ़त है. सो आपको लगता है कि ये जो इकोनॉमीज बाहर की ओपन अप हो रही हैं वो भी भारत के लिए एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है? देखिए, आपने सही कहा है. जैसे मैंने पहले कहा कि ये कमोडिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक बूम आया है, एक जो प्राइस राइज का हम ट्रेंड देख रहे हैं, और यही कमोडिटी प्राइस बूम ये ग्लोबल फिनोमेनन बन गई है. ये इंडिया में नहीं हो रहा है. आप किसी भी विश्व के किसी भी बाजार में देखेंगे तो कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हमारी जो एक्सपोर्ट जो है वो प्राइमरी एक्सपोर्ट्स में काफी इजाफा आया है. और अगर आप अप्रैल की फिगर्स देखेंगे या मई के जो पहले 2-3 हफ्तों के फिगर्स देखेंगे, उसमें ये प्राइमरी मटेरियल्स, एग्रीकल्चर आइटम पर्टिकुलरली में काफी एक बूस्ट आया है. और दूसरी बात जो आ रही, मैंने देखा है कि जो इंक्वायरीज जो आ रही हैं, अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में या बड़े बड़े कंपनी में, टाटा स्टील में, जहां पे जो इंक्वायरीज जो आ रही हैं वो इंक्वायरीज हायर प्राइसेस में आ रही हैं. इसका मतलब कि जो यूनिट वैल्यू रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो यूनिट वैल्यू रियलाइजेशन पहले के तुलना से ज्यादा आ रही है. इसका मतलब जो वही यूनिट जो आप एक्सपोर्ट पहले कर रहे थे वो ₹100 लाता था, और वही यूनिट आप अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ₹110 ला रहा है, ₹120 ला रहा है. तो मैं समझता हूं जो एक्सपोर्ट्स में जो एक बायोंसी आपने कहा, वो एकदम सही कहा है आपने. एक एक्सपोर्ट में बायोंसी दिख रहा है. हम अभी ये देखना है कि किस तरह से हम एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रायोरिटाइज करें, उसी दिशा में उनको गाइड करें, जिससे कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो इससे लाभान्वित हो सके, और एक्सपोर्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जुड़ा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ एम्प्लॉयमेंट जॉब जुड़ा हुआ है. तो इसमें काफी एक पॉजिटिव चेन
बन सकता है। हमें ये देखना है कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स बायंसी, इसकी जो बायंसी जो है वो मेंटेन रहे और कमोडिटी प्राइस में जो हमने एक चढ़ाव देखा है उस चढ़ाव के ऊपर राइड कर आगे और भी अपनी अर्निंग्स बढ़ा सके। Mr. Bhattacharya, Sonu just spoke about the currency, the Indian rupee, which is right now strengthening against the dollar, and you were talking about the exports, which have, gained. Yeah. But the point is, according to report, rupee has made a strong comeback. Now it has become Asia's top performing currency right now. And in fact, it has climbed 1.7% against the dollar. But a stronger rupee will have an adverse effect on the exports at a time that the economy is grappling with the effects of pandemic. So how do you Well, what would you say to I that? entirely agree with you that economic theory suggests, and it has been seen over time, that when the Indian rupee gets stronger, then the export competitiveness gets undermined to that extent. But what is happening right now is that the dollar is weakening. And the second point is that India's the foreign exchange flows are on a high. In a sense, every week that you see the RBI's figures, you see that there is an accretion to India's foreign exchange reserves. So when there is more foreign exchange reserves available, you will see an appreciation in the value of rupee against the dollar. And coupled with that, please recognize that the consumption of petroleum products has not been very high. On the contrary, yes, because of the April-May, they have remained very, very subdued. So India's demand for dollar for purchase of petroleum products has also not seen an increase. So this has also kept a tight lid on the demand for dollar. So taken together, your rupee has appreciated. Yes, they will have an impact on exports, but I think if it is happening naturally, I will not be worried. When the rupee dollar rates are fixed through market interventions by the Reserve Bank of India, then I get worried. But I think this is a natural process that is happening, and one has to take it, par for the course. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अन्य एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहे। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% की बढ़त में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और जापान का निक्केई दोनों 0.3% की वृद्धि में रहे। लेकिन दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां मामूली गिरावट थी। लंदन का फुटसी 0.3%, फ्रांस का कैट 0.1% और जर्मनी का डैक्स 0.2% की मंदी पर थे। Moving on to the U.S. markets, Wall Street's main indices witnessed marginal losses yesterday as investors continue to try and assess the trajectory of inflation. Federal Reserve officials continue to downplay rising price pressures, and Fed Vice Chair Richard Carrera said the central bank can take steps to cool a jump in inflation. Yields on longer-dated U.S. Treasuries fell for a fourth straight day, with the benchmark 10-year yield hitting a fresh two-week low of 1.564% and helping to ease inflation worries. The yield had climbed to as much as 1.776% at the end of March. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both fell marginally by 0.2%, while the Nasdaq Composite Index ended flat. मिस्टर भट्टाचार्य, जो यील्ड गिरी है 2 वीक लो पे आ गई है 1.6 से नीचे, ये आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा साइन है इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसे कम करने के ओर? अगर आप ये भारत की बॉन्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये अच्छा एक सूचक है, क्योंकि अगर जब आपकी यील्ड सॉफ्टन होती है तो उससे जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की जो टूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, उसको इस्तेमाल करने में काफी सुविधा मिलती है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA की परिसंपत्ति 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना में अंशदाताओं के योगदान से
पेंशन परिसंपत्ति 13 साल बाद 6 लाख करोड़ रुपए हो गई। पीएफआरडीए के तहत पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस अंशदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना में 74,10,000 सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी क्षेत्र से 28,37,000 व्यक्ति शामिल हुए हैं। 21 मई तक एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत अंशदाताओं की कुल संख्या 4,28,00,000 को पार कर गई है। क्या कहेंगे आप, सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन का कितना बड़ा रोल होता है और जो गैर सरकारी क्षेत्र से अंशदाताओं की संख्या बढ़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो संख्या बढ़ रही है, ये मैं समझता हूँ ये ज्यादा बढ़ रही है सरकारी पेंशनर्स के आने से, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2004 में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो सरकार के जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं 1 जनवरी 2004 से, उनकी जो पेंशन जो होगी वो डिफाइंड पेंशन बेनिफिट नहीं होगी, यानी कि जो कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट हो जाएगा। और उसी के लिए और ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि सरकार ने देखा था कि इसी तरह चलता जाएगा तो सरकार की जो खजाने के ऊपर जो प्रेशर आएगा पेंशन की, ऑलरेडी 2018 से अगर आप देखें सरकार की जो पेंशन लायबिलिटी है वो सरकार के वेजेस लायबिलिटी से ज्यादा है। जो पेंशनर्स की संख्या सरकार की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा है। तो इसीलिए वो जो नेशनल न्यू पेंशन स्कीम और पीएफआरडीए का 2007-8 में जो उनका निर्णय लिया गया था, उसी के कारण ये आस्ते आस्ते वही स्कीम प्राइवेट सेक्टर को भी कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। तो लोग इसी न्यू पेंशन स्कीम में आ रही हैं और पीएफआरडीए के कंट्रोल से ज्यादा लोग इसी स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार में तो ये कंपलसरी हो गया है, जो परमानेंट एम्प्लॉई जो ज्वाइन कर रहे हैं वो इमीडिएटली 2nd महीने से उनको यही स्कीम में आना पड़ता है। तो इसीलिए ये संख्या काफी बढ़ गई है और 34 लाख करीब सरकार के पास इस वक्त एम्प्लॉइज हैं और करीबन उसके डबल पेंशनर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो सिलसिला चलता रहेगा, ये पेंशनर्स बढ़ता रहेगा। 2035 और 2040 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पर उसके बाद यही न्यू पेंशन स्कीम की एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो सरकार के खजाने के ऊपर आएगी, क्योंकि नई पेंशन लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं ये इसकी जो पॉजिटिव बेनिफिट्स इस वक्त नहीं दिख रही हैं, पर पॉजिटिव बेनिफिट सरकार के खजाने के लिए 2035-40 के बाद आएगी। इस वक्त जो सरकारी जो एम्प्लॉइज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज जो इस स्कीम में ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको एक डिफाइंड पेंशन के बदले में एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन बेनिफिट मिल सकता है। जी। Moving on to commodities, oil prices today fell marginally, trading in a narrow range. Crude prices got some support from the optimism about improving US fuel demand and a weak dollar, but weakened with the prospect of returning Iranian oil. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $68.40 per barrel, while WTI crude prices were around $65.80 per barrel. मिस्टर भट्टाचार्य, ब्रीफली फ्राइडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। इसमें आपको कोई भी आशा है कि शायद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कुछ बातचीत होगी? नहीं, मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम सेक्टर में बातचीत नहीं होगी। जो बातचीत रहेगी वो मेरे ख्याल से वैक्सीन या हेल्थ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैसी होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस मीटिंग में शायद नहीं आएगी। तो आपको लगता है कि जो कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उन पर शायद जीरो, उनके जीएसटी के ऊपर काफी भारी चर्चा होगी। जी। चलते हैं सोने की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजारों में मूल्य वृद्धि के बीच सोने का मूल्य 200 रुपए से अधिक की बढ़त में रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 230 रुपए बढ़कर 49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी भी 360 रुपए महंगी होकर 72,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,908 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त के साथ $28.20 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली, आपको लगता है कि इन्फ्लेशन फियर्स और डॉलर वीकनेस देखते हुए प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, $1,900 के ऊपर पहुंच गए हैं? कमोडिटीज एंड मेटल सेक्टर में एक नया बुलिश ट्रेंड आया है और मैं लगता हूं कि ये बुलिश ट्रेंड चलता रहेगा जब तक ना एक स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी खत्म ना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर भट्टाचार्य आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks gain more than 0.5%. Sensex reclaims 51,000 mark. Nifty ends above 15,300 level. Global indices trade mixed amid worries of inflation rise. And gold prices climb to trade beyond 49,000 rupees per 10 gram at Multi-Commodity Exchange. And that's it in this edition of Market Mantra. This is Anubha Rohatgi and Sonu Sood saying bye-bye. We'll be back tomorrow with another edition of Market Mantra at 6:30 p.m. Do join us then. Till then, have a good day.